صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک میں ایک نہایت خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر کے لوگ کھاتے پیتے اور خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اسی شہر میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا اور وہ بھی ہر انسان کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آتا تھا اور میٹھی زبان میں بات چیت کرتا تھا، جس طرح وہ خود ایک اچھا انسان تھا۔ اسی طرح اس کی بیوی بھی ایک نیک اور بااخلاق خاتون تھی۔ اس امیر آدمی کے ہاں اکثر مہمان آیا کرتے تھے، عزیز رشتہ دار، جان پہچان والے، یا پھر کوئی مسافر جو اس امیر آدمی کے بارے میں سن کر اور اس کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر اس کے مہمان خانے میں ٹھہر جاتا تھا۔ وہ ہر مہمان کی دل کھول کر خاطر میں درد کرتا اور رخصت کے وقت انہیں دوبارہ آنے کی دعوت بھی دیتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے انسان کو کون پسند نہیں کرتا، مگر کہتے ہیں نا، لالچ بری بلا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ آ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک بڑا آدمی کاروبار کے سلسلے میں اس شہر میں آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس پورے شہر میں اپنا کاروبار شروع کرے۔ وہ پہلے بھی کئی قصبوں اور کئی شہروں میں الگ الگ دکانیں کھول چکا تھا اور وہ سب کی سب اچھی کامیابی کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہر مہینے وہ ہر شہر کا دورہ کرتا اور اپنا حساب کتاب دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ سیدھا اسی امیر آدمی کے پاس پہنچا۔ سلام دعا کے بعد اس نے ادب سے کہا، اجی حضوری، میں آپ کے بارے میں سن کر آیا ہوں۔ میں اس شہر میں نیا ہوں اور یہاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے لیے کسی نیک اور ایماندار آدمی کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے آپ کا نام بتایا، اسی لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ وہ امیر آدمی، جسے لوگ شیخ صاحب کے نام سے جانتے تھے، بڑی خوش مزاجی سے مسکرائے اور بولے، بہت اچھا کیا آپ نے، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیں، آرام اور سکون سے رہیں اور اپنے کاروبار کے بارے میں سوچیں۔ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں آپ کی خدمت کروں گا، اور ویسے بھی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ ایک اچھے اور نیک انسان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ مہمان خانے میں اسے ایک الگ کمرہ دے دیا گیا کیونکہ اس کے پاس بہت سارا سامان تھا۔ اسی سامان میں ایک نہایت خوبصورت اور بھاری صندوق بھی تھا، جسے شیخ صاحب بڑی دلچسپی سے بار بار دیکھ رہے تھے۔ بالآخر وہ آدمی شیخ صاحب سے بولا، ارے بھائی، اب آپ سے کیا پردہ، یہ صندوق میرے لیے بہت خاص ہے۔ اس صندوق میں کچھ نہایت قیمتی ہیرے ہیں۔ پھر وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ ہیرے مجھے ایک ایسے آدمی سے ملے ہیں جس کے ذمے میرا کچھ حساب تھا۔ رقم کافی زیادہ تھی، مگر وہ آدمی میرا حساب ادا نہ کر سکا۔ حالانکہ وہ کبھی ایک بڑا رئیس تھا، مگر اب وہ لیٹا ہوا رئیس بن چکا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ عیش و آرام میں اپنی بڑی بڑی جائیدادیں لٹا دیتے ہیں، اس نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ کل تک وہ ہاتھیوں کا مالک تھا اور آج مرغیوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ وہ آدمی گہری سانس لے کر بولا، اس نے اپنے سارے خاندانی زیورات ان لوگوں میں بانٹ دیے جن کا وہ مقروض تھا، اور ان زیورات کو یوں بانٹا جیسے کوئی چنے بانٹ رہا ہو۔ میں بھی اسی وقت وہاں پہنچ گیا جب وہ اپنے دادا پردادا کی دولت لیٹا رہا تھا اور لوگ وہ سب کچھ لوٹ کر خوش ہو رہے تھے۔ جب میں نے بھی اپنی رقم مانگی تو اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے یہ ہیرے دے دیے اور رندی ہوئی آواز میں بولا، بس یہی میرا آخری سہارا ہے اپنی عزت بچانے کا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں۔ حویلی بھی بک چکی ہے، باغات بھی بک چکے ہیں، اور ان ہیرے زیورات کی قیمت آپ کی رقم سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ نے دوسرے لوگوں کی طرح نہ مجھے ذلیل کیا، نہ میرا مذاق اڑایا، اسی لیے یہ دولت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ آدمی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آپ کو یقین نہیں ہوگا شیخ صاحب، مجھے اس وقت کتنا رنج ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنا قرض معاف کرتا ہوں، آپ اپنا صندوق اپنے پاس رکھ لیجئے، خداً آپ کی عزت قائم رکھے۔ مگر وہ نہیں مانا، اور پتہ ہے وہ آدمی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، شیخ صاحب، اسی رات وہ آدمی زندگی سے ہار گیا۔ اعلیٰ کسی کو ایسا انجام نہ دکھائے اور ایسے معاملات میں ہر انسان کو عقل اور صبر عطا فرمائے تاکہ کوئی بھی ایسا قدم سوچے سمجھے بغیر نہ اٹھائے۔
वो एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर मैं इस संदूक को अपने घर ले जाने के लिए सफ़र मुकम्मल करता तो रास्ते में मुझे बड़ा नुकसान हो सकता था, इसीलिए मैं मजबूर हूँ और ये संदूक अपने साथ रखे हुए हूँ। आपके पास पहुँचकर मुझे अपने आप को महफूज महसूस हो रहा है, वरना लौटने वालों की कमी नहीं। फिर उसने नरमी से कहा, आप ऐसा करें कि इस संदूक को मेरी इमानत समझकर अपने पास रख लें। जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो ये हीरे आपसे ले लूँगा, मगर भाईजान ज़रा संभल कर, ये हीरे हैं, कोई आम चीज़ नहीं। ये सुनकर शेख साहब घबरा गए और बोले, मुझे इतनी बड़ी दौलत संभालने में डर लग रहा है। वो ताजिर मुस्कुराकर बोला, डरने की कोई बात नहीं भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और वैसे भी ये संदूक आपके पास ही ज़्यादा महफूज रहेगा। मैं तो मेहमान खाने में रह रहा हूँ जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, और ऐसे में ये संदूक गैर महफूज है। जब मैं कारोबार के लिए बाहर जाऊँगा तो तब भी ये आप ही की जिम्मेदारी होगी। ये बात शेख साहब की समझ में आ गई। कुछ सोचकर वो बोले, ठीक है, ये संदूक मैं अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने हीरों की गिनती कर लीजिए और मुझे भी दिखा दीजिए, ताकि वापसी पर हमारे दरमियान कोई बात पैदा ना हो। जब इस आदमी ने संदूक खोला तो शेख साहब की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। हीरे, मोती, याकूत, फेरोज़े, ऐसे नायाब हीरे ज़ीवरात जिन्हें शेख साहब ने ख्वाब में भी नहीं देखा था। इन ज़ीवरात को देखकर शेख साहब के साफ दिल में शैतान ने रास्ता बना लिया और लालच ने आहिस्ता आहिस्ता जगह बना ली। मिनाह में पानी आ गया, मगर ज़ाहिर में उन्होंने ईमानदारी दिखाई और बोले, जी आप गनकर बताइए कि कितने ज़ीवरात हैं। वो आदमी सीधा साधा था। उसने पूरा संदूक उनके सामने पलट दिया और एक एक करके हीरों की गिनती शुरू कर दी। जब सब कुछ गन लिया गया तो उसने एक कागज़ पर लिख दिया, इतने हीरे, इतने याकूत, इतने फेरोज़े और इतने मोती। जब शेख साहब वो संदूक अपने घर ले गए तो बीवी ने हैरत से पूछा, ये इतना खूबसूरत संदूक कहाँ से ले आए? शेख साहब मुस्करा कर बोले, बेगम, ये संदूकचा नहीं, ये तो कारवन का खजाना है। अगर उसके अंदर देख लो तो आंखें खुली की खुली रह जाएं। अफसोस कि मैंने उसकी कंजी नहीं ली, वरना तुम्हें दिखा देता कि उसमें क्या है। फिर उन्होंने बीवी को वो कागज़ दिखाया। हीरों और मोतियों की तादाद देखकर बेगम साहबा हैरत से लोटपोट हो गईं। बोले, इतने हीरे ज़ीवरात अगर ये मुझे मिल जाएं तो मैं ऐसे ज़ीवरात बनवाऊं कि लोग देखते ही रह जाएं। इसी लम्हे शेख साहब के साथ साथ इनकी बीवी के दिल में भी लालच दाखिल हो गया। उन्होंने दिल ही दिल में ये पक्का इरादा कर लिया कि वो ये संदूक वापस नहीं करेंगे। आखिर वो परदेसी आदमी इनका क्या बिगाड़ लेगा। जिस वक्त वो संदूक खोला गया था और इन्हें दिया गया था, इस वक्त वो दोनों अकेले थे। वहाँ कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था और ये बात भी तय थी कि इस मुसाफिर आदमी की कोई बात नहीं मानेगा और कोई शेख साहब पर शक भी नहीं करेगा। आखिर क्यों? क्योंकि अब तक इनका दामना बिल्कुल साफ था। वो खुद भी बहुत अमीर आदमी थे, लाखों में खेलते थे। ऐसे शख्स पर कोई घटिया काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर बात वही है, किसी के दिल का हाल कोई नहीं जानता और शैतान हमेशा ताक में रहता है कि कब इंसान को अपने जाल में फंसाए और कब उसे नेकी के रास्ते से हटाकर बुराई की राह पर ले जाए। इसने तो अल्लाह से ये अहद कर रखा है कि वो क़यामत तक अल्लाह के बंदों को भटकाता रहेगा, और इस बार भी उसे मौका मिल गया। उसने शेख साहब जैसे अच्छे इंसान को भी भटका दिया। इनके दिल व दिमाग में लालच भर गया न कि आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई और बुराई ने दिल में डेरा जमा लिया। दोनों माया बीवी दिल ही दिल में बहुत खुश थे। मुफ्त में इतनी बड़ी दौलत जो हाथ आ गई थी, मगर उन्होंने अपने दिल की बात किसी पर जाहिर न होने दी और इस मुसाफिर आदमी की
इसी तरह खूब खातिर मदारत करते रहे। उसके लिए बाजार में दुकान भी दिलवाई गई, आदमी भी रखवा दिए गए जो दुकान संभालते, यहाँ तक कि गाहक भी खास तौर पर उसी की दुकान पर भेजे जाते ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहीं से खरीदें। वो मुसाफिर आदमी बहुत खुश था और शेख साहब का बार बार शुक्रिया अदा करता। चंद दिन गुजरे, फिर एक दिन उसने वापस घर जाने का इरादा कर लिया। वो शेख साहब से बोला, शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी से मेरा कारोबार यहाँ भी अच्छी तरह जम गया है। अब मैं अपने शहर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे यह इत्मीनान रहेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरी दुकान की खबर लेते रहेंगे। शेख साहब मुस्करा कर बोले, अरे ये भी कोई फिक्र करने की बात है, आप इत्मीनान से जाएं और बस आते रहिएगा, अपना मुनाफी लेकर जाया कीजिएगा, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। वो मुसाफिर आदमी बोला, तो फिर ठीक है, मैं कल सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। शेख साहब ने कहा, ठीक है, मैं आपके जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। ये कहकर शेख साहब घर के अंदर आ गए और अंदर आकर अपनी बीवी से बोले, बेगम अब वो वक्त आ गया है जिस काम के लिए हमने अपनी कमर कसी थी। ये सुनकर बेगम साहबा घबरा गईं और जल्दी से बोलें, कौन सा वक्त? क्या वो अपना संदूक वापस मांग रहा है? आज नहीं तो कल वो संदूक वापस मांग लेगा, क्योंकि कल सुबह वो अपने घर वापस जा रहा है। बेगम ने परेशानी में कहा, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने इनसे कंजी क्यों नहीं मांगी? अगर कंजी मांग लेते तो हम ताला खोलकर सारे हीरे जेवरात निकाल लेते और इसमें मिट्टी और कंकर भर देते। बेगम की ये बात सुनकर शेख साहब गुस्से में बोले, आँख ली तू, तुम्हें छोकर भी नहीं गई? अरे भली मांस, मैं उनसे कंजी कैसे मांगता? वो इस संदूक के मालिक हैं, जाहिर है कंजी इन्हीं के पास रहेगी। उन्होंने ये संदूक मुझे अमानत के तौर पर दिया है, तहफा नहीं। ये कहकर शेख साहब कुछ देर गहरी सोच में पड़ गए। फिर बेगम जिद पर आकर बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये संदूक वापस नहीं दूंगी, और आप भी इन्हें साफ साफ कह दीजिएगा कि उन्होंने हमें कोई संदूक नहीं दिया। अगर वो ज्यादा इसरार करें तो इनसे कहिएगा कि कोई गवाह लाएं जिसके सामने उन्होंने ये संदूक दिया हो। वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कहाँ से लाएगा? गाल और कौन उसकी गवाही देगा? आप बस अपना इरादा मजबूत रखिए, मैं आपके साथ हूँ। मजाल है कि वो आपका कुछ बिगाड़ सकें। कुछ ही देर बाद जब वो मुसाफिर आदमी अपने सफ़र के लिए तैयार होने लगा तो उसने शेख साहब से कहा, शेख साहब अब मेरा संदूक ले आइए ताकि मैं सफ़र के लिए रवाना हो सकूं। संदूक? कौन सा संदूक? शेख साहब हैरत से बोले। वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, अरे शेख साहब भूल गए, वही हीरे ज़ेवरात वाला संदूक जो मैंने आपके पास अमानत के तौर पर रखा था, और ये भी कहा था कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो आपसे वापस ले लूँगा। शेख साहब की हैरत देखने के काबिल थी। अचानक वो खड़े हुए और गुस्से में बोले, आपका दिमाग ठीक है जनाब? कौन सा संदूक? आपने मुझे कोई संदूक नहीं दिया था। ये सुनकर वो आदमी और भी घबरा गया, हकलाते हुए बोला, शेख साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको हीरे ज़ेवरात से भरा हुआ संदूक दिया था ताकि आप उसे अपने पास रखें और मैं वापसी पर ले लूं। आप उसे अपने घर ले गए थे। आप अपनी बेगम से पूछ लीजिए। खबरदार! शेख साहब गुस्से में दहाड़े। मेरी बेगम का नाम भी मत लेना। शेख साहब का गुस्सा इतना शदीद था कि उनके नौकर चाकर भी वहाँ जमा हो गए और प्लान के मुताबिक शेख साहब की बीवी भी दरवाजे पर आ गई। गुस्से में बोली, ये कैसा हंगामा है? हमारे घर में ये क्या हो रहा है? ये कैसा मंदी जैसा माहौल बना रखा है? ये शरीफों का घर है, यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। फिर उसने शेख साहब की तरफ देखकर कहा, आखिर
ये साहब किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं, जरा देखो तो सही, ये मुझ पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। ये सुनकर शेख साहब शेर की तरह दहाड़ कर बोले, ये कह रहा है कि उसने मुझे एक संदूक दिया है जो हीरे जेवरात से भरा हुआ था। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। लोग कहने लगे, कौन सा अक्ल का मारा आदमी हीरे जेवरात से भरा हुआ संदूक यूं उठाए फिरेगा। आहिस्ता आहिस्ता नौकर चाकरों के साथ मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए और फिर किसी ने भी इस मुसाफिर आदमी की बात पर यकीन न किया और बेगम आए लग शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। बोली, देखो जरा, नेकी अलग होना लाजिम है। इतने दिन हमारे घर मेहमान बनकर रहा, खाया पिया, आराम किया, हमने मेहमान समझकर उसे सिर आंखों पर रखा, उसके कारोबार में हाथ बटाया और अब ये हम पर इल्जाम लगाने चला आया। बेगम के ये अल्फाज सुनकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। हर कोई इसी मुसाफिर आदमी पर थू थू करने लगा और उसकी बात कोई सुनने को तैयार न था। आखिरकार शेख साहब के नौकर चाकिरों और मोहल्लेदारों ने इस बेचारे आदमी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारा कहाँ जाता, कोई उसका अपना न था। कुछ देर सड़क पर खड़ा रहा, फिर हिम्मत बांधी और अपनी नई दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर जो आदमी बैठा था वो शेख साहब ही का रखवाया हुआ था, मगर वो खुद एक शरीफ और ईमानदार इंसान था। वो शेख साहब के इन करतूतों से बिल्कुल नावाकिफ था और इन्हें एक नेक आदमी ही समझता था। लालच का ये भी बुरा पहलू है कि लाखों के मालिक होकर भी जब मफत हाथ आए तो इंसान अपनी अक्ल गनवा बैठता है और शैतान से दोस्ती कर लेता है। जब इस दुकानदार ने सारी बात सुनी तो उसे यकीन ही ना आया, मगर जब इस मुसाफिर आदमी ने रो रो कर अपनी बात समझाई तो आखिरकार उसे यकीन आ गया। तब वो बोला, भाई आप ऐसा करें, शहर के हाकिम के पास चले जाएं, इन्हें अपना सारा हाल बताएं, संदूक की पूरी निशानी बताएं कि वो कैसा है और इसमें कितने हीरे हैं, और कोई ऐसी ख़ास बात जो सिर्फ आप जानते हो शेख साहब, न जानते हो, कोई ऐसी निशानी जिससे ये साबित हो सके कि संदूक आप ही का है। ये सुनकर इस मुसाफिर आदमी ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और इनमें से एक चांदी की चाबी अपने हाथ में लेकर बोला, देखो ये इस संदूक की चाबी है, ये मेरे पास है। ये देखकर वो आदमी हैरान हो गया और बोला, आपके पास तो बहुत बड़ा सबूत है, आऊँगा। फौरन हाकिम शहर के पास पहुँचे। अगरचा शेख साहब की पहुँच दूर दूर तक है और लोगों पर उनकी धाक बैठी हुई है, मगर आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। हाकिम शहर एक नेक और इंसाफ पसंद आदमी है। फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मगर डर लगता है शेख साहब, बाद में मुझे जीने नहीं देंगे। इनके मुझ पर बहुत एहसानात हैं और इन्हीं की वजह से मुझे ये काम मिला है। ये सुनकर मुसाफिर आदमी बोला, नहीं, आप मेरे साथ मुझ चलें, आऊँगा। यूं जाहिर करें जैसे आपको कुछ भी मालूम नहीं। ये काम मैं खुद करूँगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये कहकर वो मुसाफिर आदमी हाकिम शहर के पास पहुँच गया और उसे सारा हाल सुना दिया। जब हाकिम को ये मालूम हुआ कि इस मुसाफिर के पास कोई गवाह नहीं तो वो अफसोस से बोले, आपने बहुत बड़ी गलती की, किसी गवाह के बगैर इतनी बड़ी रकम एक ऐसे आदमी के हवाले कर दी जिसे आऊँगा अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। चाहे वो कितना ही अमीर और इज्जतदार क्यों ना हो, आखिरकार वो इंसान ही है और लालच बड़ी बला है जो बड़े बड़ों को भी काबू में कर लेती है। फिर हाकिम ने कहा, लेकिन सबूत के तौर पर आपके पास ये चाबी मौजूद है। इसी वक्त हाकिम शहर ने शेख साहब को हाजिर होने का हुक्म दे दिया। शेख साहब को जरा भी अंदाज़ा न था कि वो मुसाफिर हाकिम के पास पहुंच जाएगा। वो तो उसे लाचार और बेबस समझ रहे थे। ये ख्याल था कि वो रो पीट कर अपने शहर वापस चला जाएगा और ये संदूक
हमेशा के लिए इनका हो जाएगा। मगर अब क्या करते? हाकिम का हुक्म था, अगर खुद न जाते तो ज़बरदस्ती बलू लिए जाते। चनांचा वो सवारी पर बैठे बड़ी शान के साथ दरबार पहुँचे और जब वहाँ इस मुसाफिर आदमी को बैठा देखा तो दिल ही दिल में कुछ घबरा गए, मगर जाहिर न होने दिया। फिर हाकिम शहर ने शेख साहब की तरफ देखकर पूछा, शेख साहब, इन मुसाफिर साहिब ने एक हीरों से भरा हुआ संदूक आपके पास बतौर अमानत रखवाया था। आओ वो संदूक वापस क्यों नहीं करते? ये सुनकर शेख साहब ने हैरत के मारे मना खोल दिया, आंखें फैला लें और हाथ छटकते हुए बोले, जनाब कैसा संदूक? किसका संदूक? मैं कुछ भी नहीं समझा। हाकिम शहर नरमी से बोले, ज़्यादा गुस्से में मत आएं, ज़रा सब्र से बोलें और जो कुछ भी आपसे पूछा जाए उसका जवाब आराम से दीजिए। शेख साहब मुसाफिर आदमी को घूरने लगे, फिर बोले, जी हाँ पूछिए। हाकिम शहर ने कहा, क्या आओ इन मुसाफिर साहिब को जानते हैं? शेख साहब बोले, जी हाँ, कुछ ही दिन पहले ये मेरे यहाँ मेहमान बनकर आए थे। मैंने इन्हें अपने मेहमान खाने में ठहराया, इनकी खूब खातिर मदारत की और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया। ये हमारे शहर में कारोबार करना चाहते थे तो मैंने इनके लिए दुकान बनवाई और इनका कारोबार चालू कर दिया। फिर चंद दिन बाद जब ये अपने शहर वापस जाने लगे तो मैंने उन्हें रुखसत कर दिया। बस यही हकीकत है। हाकिम शहर ने मुसाफिर आदमी की तरफ देखा और पूछा, क्या ये बात दरस्त है? मुसाफिर आदमी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, जी बिल्कुल दरस्त है। शेख साहब ने मुझ पर वाकई बहुत एहसान किए हैं और मैंने भी इन्हें एक नेक इंसान समझकर अपना हीरों से भरा हुआ संदूक उनके हवाले कर दिया था, क्योंकि मुझे इनसे बेहतर कोई नेक आदमी नज़र नहीं आया। मैंने खुद कहा था कि ये संदूक बतौर अमानत आपके पास रहे और जब मैं वापस जाने लगूं तो मैं ये संदूक आपसे ले लूँगा। ये सुनकर शेख साहब फ़ौरन बोल उठे, नहीं जनाब, ये सब झूठ है, बिल्कुल गलत। ये आदमी इंतहाई चालबाज है और मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है। उसने मुझे कोई संदूक नहीं दिया। वो गुस्से में दांत पेसते हुए बोले। मुसाफिर आदमी बोला, शेख साहब मेरा गवाह खुदा है। ये सुनकर शेख साहब तंजिया अंदाज में बोले, तो फिर अपनी गवाही के लिए खुदा को ही बुलाइए, क्योंकि आपके पास कोई गवाह मौजूद नहीं। फिर वो हाकिम शहर से मुखातब होकर बोले, जनाब आप खुद फैसला कीजिए। ये कहते हैं कि मैंने हीरों से भरा हुआ संदूक ले लिया। भला कोई अक्ल का मारा आदमी ऐसा खजाना यूं उठाए फिरता है? और मान भी लिया जाए कि उन्होंने मुझे वो संदूक दिया था तो इनका हक बनता था कि कोई गवाह साथ लेते। सरफ चंद दिन की मुलाकात में इतना बड़ा एतमाद, हीरे ज़ेवरात, कोई मौली गाजर तो नहीं कि यूं किसी के हवाले कर दिए जाएं। ये मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और शायद ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि मेरी सादगी और नेक दिल्ली से कोई फ़ायदा उठाया जा सके। हाकिम शहर ने सिर हिलाकर कहा, वाकई आपके पास कोई गवाह मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो सिर्फ आप जानते हों और जिसके बारे में शेख साहब ना जानते हों? ये सुनकर मुसाफिर आदमी ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और इनमें से एक चांदी की चाबी अपने हाथ में लेकर बोला, जनाब ये इस संदूक की चाबी है। ये चाबी इसी रईस साहब की बिनाई हुई है और इस पर ऐसे हुरूफ कंदा हैं जिनसे इन्हीं का नाम बनता है। यही चाबी इस संदूक में लगती है और कोई दूसरी चाबी इसमें नहीं लग सकती। वो जरा रुका, फिर बोला, और एक बात और, इस संदूक के 2 पींदे हैं। निचले पींदे में एक ख़ास निशान है जिसका नंबर सरफ मुझे मालूम है। मैं इस जगह अंगली से दबाऊंगा तो एक पतला सा खाना बाहर आ जाएगा और इस खाने में मुखमल की एक छोटी सी डबिया है
जिस के अंदर इन रईस साहब की एक अंगूठी रखी है जिस पर कीमती नगीना जड़ा हुआ है। हाकिम शहर ने जब खुद गौर से देखा तो वाकई वहाँ एक अलमारी मौजूद थी जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। हाकिम ने शेख साहब से कहा, शेख साहब उसे खोलिए। शेख साहब को अभी भी ये इत्मीनान था कि शायद ये लोग उसे दरवाज़ा समझकर छोड़ देंगे, मगर बराहो इस सिपाही का उसने सारा भांडा फोड़ दिया। शेख साहब घबरा कर बोले, जनाब उसकी कंजी मेरी बेगम के पास है और वहाँ अपने मैके गई हुई है। हाकिम ने बेसाख्ता कहा, ठीक है, घर की मालकन ना सही तो घर का मालिक तो मौजूद है। लो भाई ताला यहीं तोड़ा जाए। ये हुक्म सुनते ही हथौड़ा उठा लिया गया। हथौड़े की हर ज़रब अलमारी के ताले पर नहीं बल्कि जैसे शेख साहब के सीने पर लग रही थी। आखिरकार आखिरी ज़रब पड़ी, ताला टूटकर ज़मीन पर गिर गया और इसी लम्हे शेख साहब भी ज़मीन पर बैठ गए। हाकिम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, दरा संभलिए शेख साहब, शायद हथौड़े की ज़रबें आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर संजीदा होकर बोले, ये हथौड़े की ज़रबें नहीं थीं, ये आपके ज़मीर की दरबें थीं। अफसोस लालच ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खुला, मुसाफिर आदमी खुशी से चीख उठा, वही है जनाब, यही मेरा संदूक है। संदूक बाहर निकाला गया। हाकिम ने अपने हाथ से वो चांदी की चाबी ताले में लगाई और फैट ढक्कन खुल गया। मुसाफिर आदमी बोला, जनाब मेरे पास एक कागज़ है, यही इस वक्त सबूत है, गन लीजिए। कितने हीरे, कितने मोती, कितने याकूत और कितने फेरोज़े हैं। खुशी के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। वहाँ कागज़ पढ़ता जा रहा था और हाकिम शहर अपने हाथों से हीरे ज़ेवरात निकालते जा रहे थे। हिसाब बिल्कुल दरस्त था। हाकिम ने कहा, अब वो दूसरा सबूत भी दिखा दीजिए। मुसाफिर आदमी ने संदूक के निचले हिस्से में एक ख़ास जगह पर अंगली दबाई। फैट एक छोटा सा तख्ता बाहर आ गया। इस पर मुखमल की एक छोटी सी डबिया रखी थी। मुसाफिर आदमी बोला, जनाब उसे खोलिए। हाकिम ने डिबिया खोली। इसमें वाकई सोने की एक अंगूठी थी जिसमें एक शानदार अलमासु जड़ा हुआ था। हाकिम ने शेख साहब की तरफ देखा और पूछा, शेख साहब अब आप क्या कहते हैं? शेख साहब ने सिर झुका लिया, थकी हुई आवाज़ में बोले, अब मेरे पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा जनाब। हाकिम ने कहा, तो आप ये कबूल करते हैं कि ये संदूक इन मुसाफिर साहब ही का है? शेख साहब आहिस्ता से बोले, जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ, ये संदूक इन्हीं का है और सच ये है कि शैतान से ज़्यादा मुझे मेरी बेगम ने बहकाया था। अगर वो मुझे एक साथ है ना तो शायद मैं लालच पर काबू पा लेता। शेख साहब का झुका हुआ सिर, आंखों के आंसू, चेहरे की जर्दी और कपकपाते हाथ देखकर मुसाफिर आदमी का दिल पसीज गया। उसे याद आ गया कि शेख साहब ने इसके साथ कितनी भलाइयाँ की थीं। खाना खिलाया, आराम दिया, दुकान खोलने में मदद की। वो बेअख्तियार बोल उठा, नहीं शेख साहब, ऐसा ना कहिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे मेरा संदूक वापस मिल गया, बस यही काफ़ी है। फिर उसने हाकिम शहर से कहा, जनाब इस मामले को यहीं ख़त्म कर दीजिए। मैंने उन्हें माफ़ किया और अल्लाह भी इन्हें माफ़ करे। मैं नहीं चाहता कि जिस शहर में ये सर उठाकर चलते थे अब इनका सर हमेशा के लिए झुक जाए। ये कहकर वो मुसाफिर आदमी अपना संदूक उठाए अपने शहर की तरफ रवाना हो गया और शेख साहब ने भी सच्चे दिल से तौबा कर ली कि अब वो कभी लालच नहीं करेंगे और कभी शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।